लजीज खानों के साथ बिस्मिल्लाह होटल कर रहा है आपका इस्तकबाल। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। देश को तोड़ने वाले कानून पर नागरिकों का संघर्ष जारी रहेगा। बीजापुर जिला अधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को निवेदन पत्र सौंपते हुए पत्रकारों से बात करते हुए सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने वाले कानून, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धारा 144 के चलते कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच एनआरसी और सीएए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए मोदी और अमित शाह के गैर संवैधानिक फैसलों पर जमकर बरसे रहनुमा, जिसमें कांग्रेस मुखंड हमीद मुशर्रफ, श्रीकांत पुजारी, शकील मौलाना, बंदे नवाज महाबरी, अजीम इनामदार, भीमशी कलादगी, अकरम माशालकर, मोदी और बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। ಎಲ್ಲ ಜನರ ಗುಡ್ಗಾಡ ಜನ ಆದಿವಾಸಿ ಅದಾರ, ಬೌದ್ಧರು ಅದಾರ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಬೇರೆ ದಿವಸದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಅದಾರ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 40 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅದೇವು. ನಮ್ಮನ್ನ ಪೌರತ್ವನ ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಕೊಡೋದು ಕೊಡೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನು ಕರಾಳ ಕಾನೂನು ಅದ. ಈ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಅದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಪ್ರಗತಿ ಒತ್ತಾಯ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪೌರತ್ವ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಧರ್ಮದ ಮ್ಯಾಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ, ಸಂವಿಧಾನ ಮ್ಯಾಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ್ರಿ. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರದಂತ ಹೋರಾಟದ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಭಗವಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 19/12/2019 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಡವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಕೈಬಿಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದು ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 2 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ದೇಶದ ಜನರ ಆಶಯದಂತೆ ಇಂತಹ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆಗ ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ 1955ರ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ದೇಶದ ಜನರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ 2 ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನಾರಹಿತವಾಗಿ ಬಹುಮತ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದಿರುವುದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗವು ದೈತ್ಯಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನವು ಉಸಿರುಗಟ್ಟದಂತಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀಚ ಪಿತೂರಿಯು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಥ ಅಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. आज परार बिल के बारे में आज पूरे संगठन वाले गांधी चौक से अंबेडकर सर्कल तक परमिशन दिए थे।
पूरा स्टेट करपी लगने के वास्ते खाली डीसी ऑफिस में जाक मिलो है, डीसी ऑफिस में जाको एसपी साहब को डीसी साहब को दिए। ये हमारे देश को ये मोदी और अमित शाह पूरा देश में ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ लड़ा लगने का ये बिल कर रहे हैं। ये बिल को खंडन करते हैं। ये बिल कब तक ये नहीं होता, हर एक संघ संस्था वाले डेली हमना पोना करें, डेली एक मेमोरेंडम देंगे और इसके बारे में रैली करेंगे, सब करेंगे कर रहे हैं। अब 21 तारीख तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट में करपी दिए। ये वे के बाद सब संघ संस्था वाले बैठते हैं, बैठ को हमें सब भी मिला को एक एक रूपरेख से ये करते हैं। आज हमारे भीमसी कलादगी साहब, हमें श्रीनाथ पुजारी और बहुत जने आए थे, पूरे खाली मिल को गए हैं। वहाँ क्या बात न को करो क्या कर पे जाओ कर को बोलने में सब भी अलग अलग जगह गए। अब 1-2 दिन के बाद बैठ को इसका डिसीजन लेते हैं। आज बीजापुर में नहीं, पूरे देश में जो जिस तरीके का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, इसे एक अलग कलर दिया जा रहा है। उसे बताया जा रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक अमेंडमेंट है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाओ, एक बीजापुर के एमएलए का एक स्टेटमेंट था, कांग्रेसियों के लिए वो है वो। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो लोग संविधान को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के राइट्स के लिए या मुसलमानों के खिलाफ एक अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है उसके खिलाफ लड़ाई नहीं है। इस देश के जो कानून, जिस संविधान को बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने और बहुत सारे लोग, सेक्युलर लोग जो थे, उन्होंने मिलकर इस कानून को बनाया था। लेकिन इस कानून को बदलने के लिए जिस तरीके से मुहिम चल रही है, ये किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं, इस देश के 125 करोड़ लोगों के साथ में एक नाइंसाफ़ी है। अब कैसे नाइंसाफ़ी है बोले तो वो सारे लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं। अब हम खड़े होंगे तो इतना ही नहीं था, अब 125 करोड़ लोगों को, पूरे लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं। अगर इन लोगों को अपनी गैरत इस बात पे नहीं गवारा दे रही है कि वो लोग 125 करोड़ लोगों को खड़ा कर रहे हैं और हमें तकलीफ़ नहीं हो रही, तो इन लोगों को समझना होगा कि वो एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश का जो संविधान लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ है कि वो बात करें तो वो पाकिस्तान को चले जाओ या पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन लोगों का नाता रिश्ता जो है नहीं पाकिस्तान के साथ गहरा है। इनका प्रधानमंत्री जाकर नवाज शरीफ के साथ गले मिलकर आता है, ये जाकर वहाँ पे बिरयानी खाते हैं। तो शायद इन्हें बीजेपी वालों को ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को छोड़कर जाने की और पाकिस्तान में जाकर बसने की। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों को अब तक ना किसी ने निकाल पाया है, ना कोई निकाल पाएगा। आप हजरात से ये दरख्वास्त करने जा रहा हूँ कि ये जो CAA एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट जो है वो बिल्कुल हमारे देश के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, देश के संविधान के ख़िलाफ़ है। और जो है आर्टिकल 14 के बिल्कुल जो है ये अपोज़ है। और जो है हमारा मुल्क जो है पहले से धर्मनिरपेक्ष मुल्क रहा है और धर्म के नाम पर हमारे मुल्क में जो है कोई कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। आर्टिकल 47 जो है साफ़ तौर से ये कहता है कि भाई जो है धर्म के नाम पर जो बंटवारा है वो जो है किसी सूरत में जो है कबूल नहीं होना चाहिए। तो मुसलमानों को नाम ले कर के जो है वो पूरे मुल्क के लोगों को जो है धर्म के नाम पर जो है बांटा जा रहा है। हम जो है इसे किसी भी सूरत के अंदर में जो है गवारा नहीं करेंगे। ये जो है कुछ लोग मिला कर के जो है वो कानून का साफ़ तौर से जो है उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का जो है खिलवाड़ बना रहे हैं, तो हम जो है इसको खिलवाड़ बनने नहीं देंगे। आज जो है 3 करोड़ जो है वो आसाम के बाशिंदों को जो है काम करने के लिए, एक मेरा बड़ा सवाल है गवर्नमेंट से कि 3 करोड़ आसाम के बाशिंदों के लिए जो है 6 साल का टाइम लगा है और जो है 12,000 से 16,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। हमारे इस भारत के अंदर में 125 अरब 100 करोड़ 135 करोड़ जो है भारतवासी रहते हैं, तो उनका NRC करने के लिए कितना पैसा लगेगा और वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? तो ये जो है ज़रूरत है। और फिर एक बड़ा सवाल हमारा ये है गवर्नमेंट से कि NRC इस वक्त में लाने की ज़रूरत ही क्या है? NRC और CAA एक्ट जो है इस वक्त में बनाने की ज़रूरत ही क्या है? जबकि जो है हमारे लोग जो है 80% लोग भूख से मर रहे हैं। 80% लोग जो है 80% लोग रोज़ाना की जो है 11 रुपये कम से उनकी इनकम है। और जो है हमारा हाल ये है कि जो है अभी लोग जो है रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं।
अभी पोस्टमैन की जो है एक नौकरी के लिए जो है एप्लीकेशन जो है आए थे, तो उसके लिए जो है इंजीनियर तक के लोगों ने जो है वहाँ पर एप्लीकेशन दिए। ऐसा हाल हमारा है इस वक्त में। तो रोज़ी रोटी का मसला हमारा असल मुद्दा है, और जो है खाना पीना ये हमारा असल मुद्दा है, न कि जो है CAA और NRC। इसलिए जो है हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि ये बिल को बिल्कुल वापस ले, और मुसलमानों को जो है निशाना बना करके पूरे भारतवासियों के ऊपर में ये जुल्म को थोपा जा रहा है। हम जो है इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और हम जो है इसके जो है कड़ी निंदा करते हैं कि भाई जो है ये बिल को वापस ले लेना चाहिए और भारतवासियों को इत्मीनान के साथ में रहने देना चाहिए। मेरा नाम जो है मौलाना शकील अहमद कासमी। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं, और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है, क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को, और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.